with today's class. So I'm today starting with the human resource management. Now, human resource. When we talk about human resource management, the subject itself tells you about that we will be discussing about the human dimension in an organization, right? As we are talking about human resource management and human resource. In economics, they have earlier learned that land, labor, capital, and organization. So in economics, we know that there are 4 factors of production, and labor is one such very important factors of production, because without labor or without the human resource, an organization cannot stand or cannot do anything. In management also, we know there are 4 M's of management. Normally, traditional, we used to say 4 M's. So what are the 4 M's in management? We know about 4 M's. So 4 M's means men, machine, material, and money. So the first M is men. Without men, you cannot think of organizing others, that is machine, material, and money, right? So anything that has to be organized will be organized by men only. So men is the most important, or we can say, I'm not telling men only, we call it as human resources. Human dimension is there. So we are talking about the people. So when we are talking about human resource management in an organization, we generally talk about the people dimension in an organization, right? We all know that people are the most important or valuable asset for any organization. As I said, from the managerial perspective, if I say the 4 M's concept, so men comes at the first level. That is, without men, another factors cannot be arranged. That is machine, material, money, nothing can be arranged, right? If I'm telling about 4 M's, then who will organize machine, material, and money? It has to be organized by men. So men is at the first level. Priority क्या है? Men. Without देखो human being, ये जो people बिना कुछ हो सकता है. सपोज एकदम बेसिक आप ले लो, एक ऑफिस जाते हो, वहां पे सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज हैं, कैमरा है, कंप्यूटर्स है, एवरीथिंग इज देयर. Now there has to means there are every machineries, every computers, AI, everything is there. Artificial intelligence machineries हैं, सब कुछ है. But सारी machineries हैं, systems हैं, everything is there. But they will remain idle until and unless a human being will give instruction. जब तक वो मशीन को स्टार्ट नहीं करेगा, एक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, this will not start working. कल ही मैं देख रही थी न्यूज में कि किस तरीके से वो सर्जिकल मास्क एंड ग्लोव्स बनते हैं. विदाउट ह्यूमन टच कुछ नहीं, सारे मशीनरीज में एक के बाद दूसरा प्रोसेसिंग हो रहा है, पूरा एकदम मशीनरी में. मतलब विदाउट ह्यूमन टच, कहीं पर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है. नाउ डेफिनेटली दैट मशीन इज वर्किंग इन अ सिस्टम, वो पूरी तरह से विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, दैट इट इज टेकिंग द रॉ मटेरियल एंड देन प्रोसेसिंग एंड देन द आउटपुट इज बीइंग जनरेटेड, it is packed and then processed, and it will reach to the means it will go out for the outbound logistic, right? The entire system works in this way. But there has to be a man who will actually start this machine. ये machine तो start करना पड़ेगा, raw material अंदर से लाकर उस जगह पर रखना पड़ेगा. So human dimension is very important. Without human, I cannot say that everything will be done. Everything a machine can do, but machine needs a programming. Then who will do the programming? Programming is done by the human itself. So we can say definitely above all, above everything in an organization, above all the resources, human resource comes at the priority, or it is the most valuable and unique asset of an organization. Rather, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं. आप देखो, कोई भी कंपनी है, आज इतनी सारी कंपनीज हैं, कितनी सारी कंपनीज आर producing different types of products. Suppose a company, maybe X company, they produced a product, they created something, innovation, creativity, यहाँ से एक नया product launch किया in the market with its special characteristics and features. Now this product can be immediately after some time can be copied by other competitors. Y, Z, बहुत सारे competitors हैं, they can imitate and market it well. ठीक है, मे बी कुछ फीचर्स मिसिंग हो, बट स्टिल इमिटेशन कॉपी करके कॉम्पिटिटर्स उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में. बट डू यू थिंक एक्स के जो स्टाफ हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ हैं, दे आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क्स विद लॉट्स ऑफ डेडिकेशन एंड लॉयल्टी, उनका मोरल बहुत हाई है. उनकी जो कमिटमेंट है विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इफेक्टिव कमिटमेंट. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना चाहते. सो दिस human dimension can never be copied by any organization. आज की डेट में हर कुछ कॉपी हो सकता है, हर कुछ मिल सकता है.
बट लोगों का जो एक विश्वास है, लोगों का जो मोरल है, वो जो इफेक्टिव कमिटमेंट है, इट्स नॉट कंटिन्यूअस कमिटमेंट। कंटिन्यूअस कमिटमेंट तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टाफ रहता है उनका रहता ही है उसके संग, बट इफेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन के संग लगाओ वो सबके संग नहीं रह सकता। अगर इस कंपनी के स्टाफ का अपनी कंपनी के संग लगाव है तो डेफिनेटली दे विल कम अप विथ न्यू आइडियाज टू इनोवेट समथिंग एवरी टाइम, अपडेट, so that they are apart from the crowd. So we can say that human resource is most valuable. तो अगर human resource आपके पास अच्छे हैं तो you can do anything. According to Leon C. Megginson, now the definition is according to Leon C. Megginson's, the term HR, human resources, refers to the total knowledge, skills, creative abilities, talents, aptitudes of an organization's workforce, as well as values, attitudes, and beliefs of the individuals involved. देखो ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन किया गया है। क्या है, सारी चीजें आ गई। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, टोटल ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? टोटल ह्यूमन रिसोर्स, द नॉलेज, स्किल्स, creative abilities, talents, aptitudes of an organization's workforce, as well as values, attitudes, and beliefs of the individuals involved. So it clearly indicates that it is all about the organization's total workforce, और वो total workforce की knowledge क्या है, उनका learning abilities, उनके talent, सब चीजों को लिया हमने। इसके अलावा जो वैल्यूज, एटीट्यूड, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंपोनेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो बनता है, दैट इज बीइंग एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम दिस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके सक्सेस के लिए, आइदर फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द फेलियर। It is all dependent on the organizational culture. Now culture means, culture आपको कैसे पता चलेगा? उनके वैल्यूज में, सम अप ऑफ ऑल द वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। तो मेरे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनके डिफरेंट वैरायटी स्किल्स हैं, वैरायटी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, बट उनका एक सम ऑफ वैल्यूज है। सबका अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, सबको, क्योंकि देखो हर कोई अलग अलग जगह पर डेवलप हुआ है तो हर कोई अलग है। This is people dynamics, right? Workforce dynamics is this only. Everyone is different. कोई भी एक जैसा नहीं हो सकता है। But apart from that, सब कोई मिलके एक organizational culture बनाते हैं, जो कि एक organization के success या failure के लिए बहुत ज्यादा responsible होता है। So culture means simply the sum of all the values, or which we can observe the values or the belief system or observable behavior of a group of individuals that we can observe, उसको ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको, या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो कि डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के ऊपर, मतलब एम्प्लॉइज या ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। सो डोंट यू थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स? ये जो ह्यूमन रिसोर्स हम देख रहे हैं कितना वैरायटी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विल डेफिनेटली बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ये बहुत इजी नहीं होने वाला है। As I said earlier that every HR, human resource or employees, or whatever you say, everyone will be different. कोई भी एक जैसा नहीं होगा। Every HR, human resource will be different. अब जब इतने डिफरेंट वैरायटी के लोग आपको मिलेंगे, इतने तरह की चीजें मिलेंगी, और अल्टीमेटली दिस मॉडर्न फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्लियर है कि HRM will make
Everything means HRM will work in a very complex manner. HRM is not that easy task because it is dealing with so many people, so many variety of people. Do you think HRM बहुत easy task होगा? कोई अगर बोलता है HRM human resource management is a very easy task, do you think so? Anyone? No, ma'am. नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सीधी सी बात है. Now, organization is there so that they can effectively utilize their physical and financial resources by the company's human resource. देखो, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनके गोल्स को फुलफिल करना. गोल्स के बाद आ जाते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना, फॉर विच दे नीड टू कंट्रोल देयर एफिशिएंसी एंड चेक फॉर इफेक्टिवनेस. कि क्या चीज सही है. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आप सही चीज को कर रहे हो, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कम रिसोर्सेस को यूज करके with giving less inputs you are generating more output. This is called efficiency. So effectiveness and efficiency is the ultimate goal for an organization. So economically उस भाषा को अगर मैं उस लैंग्वेज में यूज करूँ तो कैसे बोलूंगी? That is an organization aim would be to the accomplishment of organizational goals, right, by स्पेलिंग को इग्नोर करना, by utilizing the resources में सारी चीज आ गई, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन हर तरह के रिसोर्सेज आ गए. by utilizing the resources, ठीक है, ऑप्टिमली. ये जो ऑप्टिमली मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, ये तो आपने समझा कि इकोनॉमिक्स से ये टर्म हम लोग बार बार लेते हैं. दैट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. इफ वी डोंट यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमल लेवल, दैट इज टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विल नेवर अचीव. सो अल्टीमेटली नाउ हियर यू हैव टू मैनेज द फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्स. आपका फिजिकल रिसोर्सेज हैं, लैंड लेबर, सॉरी लैंड बिल्डिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं. देन यू हैव योर ह्यूमन रिसोर्स, उसको भी मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसको भी मैनेज करना है. तो अल्टीमेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव्स टू बी मैनेज. तो अब देखो ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या कर रही है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रही है, राइट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? You need to effectively handle workforce. उसके बाद देखो अल्टीमेटली क्या होता है, एचआर का जो एक ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर की अगर मैं बात करती हूँ, वो ऐसे रहता है इस बीच में. ऑलमोस्ट आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखोगे वो ऐसे बीच में, मोस्टली वो बीच वाले लेवल पे होता है. अब यहाँ पर उसको दोनों तरफ से काम होता है. मैक्सिमम एचआर मैनेजर्स वर्क्स एट दिस लेवल, राइट, बट एट द कॉर्पोरेट एचआर वर्क्स एट दिस लेवल वेयर दे हैव टू प्रिपेयर द पॉलिसीज एंड ऑल. और ये मिड लेवल में मैनेजर्स रहते हैं, एचआर मैनेजर. Now they are fully what to say responsible for the achievement of the organizational goal. अब उनके ऊपर से प्रेशर आता है मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है. फॉर दैट यू शुड हैव प्रॉपर एचआर इन प्लेस, मतलब सही जगह पर सही लोग होने चाहिए. अब ये नीचे से प्रेशर है क्योंकि ये जो जितने भी स्टाफ को रख रहे हैं, अल्टीमेट ये लोग जो हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इनको हैप्पी रखें. ये लोग अगर हैप्पी रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस इनकी मीट होगी, तो ये प्रॉपरली काम करेंगे सो दैट दे कैन मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो ऐसे ही नहीं मीट कर पाएंगे, राइट. तो एचआरएम का टास्क मतलब ऑल द वे ये एक मिड लेवल पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है. नाउ मूविंग टू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली. अब मैं एकदम आ जाती हूँ आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में. Now, as I have discussed that human resource management ultimately हम लोग किस चीज को बोलते हैं? जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कहाँ पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं? पीपल डायमेंशन. एचआरएम मतलब पीपल डायमेंशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल डायमेंशन है उसको ही मतलब उसको मैनेज करने को ही हम बोलते हैं एचआरएम, राइट. सो अब पीपल रिलेटेड जो भी चीज हो, अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक स्टाफ आएगा, वो कैसे रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्या जॉब करेगा, क्या उसकी पैकेज होगी, उसका सैलरी क्या होगा, उसका ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई भी चीज उसका टिल द एग्जिट प्रोसेस, एंट्री से लेकर एग्जिट तक आप ले लो. एक एचआर का काम क्या होता है? हर एक चीज में
नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ पे एचआर का जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है वहां पर होती है, जो नॉर्मली थियोरिटिकल कहीं लिखा नहीं होता है। आप देख लो, एचआर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में देखो बहुत सारे स्टाफ हैं, और मतलब बहुत स्टाफ है, इधर 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 हर जगह पर। Now suppose this is HR department, right? HRD, Human Resource Department, HRM भी बोलते हैं हम लोग। तो Human Resource Department की responsibility क्या है? To manage or to look after all the employees। मतलब हर एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट के परव्यू में है। हर एक एम्प्लॉय, वो इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो, इस लेवल पे, कोई भी लेवल पे हो, वो इसके परव्यू में है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखो, अब HR डिपार्टमेंट कोई एक कहीं दूर एक प्लांट है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, ट्रेड यूनियन का एक इशू। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तो जो है, लेकिन आएगी इसके माथे पर। मे बी ही इज नॉट एट ऑल अवेयर वहां क्या हो रहा है, वो यहाँ बैठा है कॉर्पोरेट ऑफिस में, पर वहां अगर प्लांट में एक इशू हुआ तो ही विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल, ही विल बी आंसरेबल फॉर द सेम। नाउ इन दैट सिनेरियो समझ में आ रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है चीजें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो थियोरेटिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है एचआरएम के फंक्शन में, दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन। ये जो कंट्रोलिंग है, या मैं जिसको बोल सकती हूँ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग फंक्शन में क्या हो जाता है, अब देखो मॉनिटरिंग में सबसे ज्यादा एक लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आर यू अवेयर ऑफ लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं? पता है लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट? दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म जो बार बार आएगा, इसलिए मैं इसको बता दे रही हूँ आप लोगों को। देखो ये सपोज एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस है, ये मार्केटिंग, राइट। अब देखो मार्केटिंग के दो बंदे, एक दो, ओके। अब देखो स्टाफ फंक्शन मतलब क्या होता है, एचआर का जितना भी मतलब जितने भी लोग, सपोज इसके नीचे ये हैं, इसके यहाँ पर भी है, एचआर का रिलेशन हर डिपार्टमेंट के लोगों के संग है। इसके संग भी है, इसके संग भी है, मतलब फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट एचआर इज कनेक्टेड विद ऑल द डिपार्टमेंट। मींस एज अ पार्ट ऑफ इट्स रोल, एचआर का जो फंक्शन है उसके हिसाब से एचआर इज कनेक्टेड विद ऑल द डिपार्टमेंट, ठीक है। हर डिपार्टमेंट हर लोगों से, मतलब आप समझ लो एचआर डिपार्टमेंट जो है वो तो सब कोई के लिए है, राइट। एचआर डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ऑल द एम्प्लॉइज, स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। एक एम्प्लॉय जितने दिन एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, वो इन से लेकर आउट तक जितने दिन रहेगा, और बीच में तो टेन्योर है ही एम्प्लॉयमेंट का, तो इन से लेकर आउट तक ही इज एक्चुअली connected with the human resource department, and so human resource department is also responsible for this employees। तो एचआर डिपार्टमेंट भी तो हर एक एम्प्लॉय के लिए आंसरेबल है। हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी खाली चेक करो कि भाई हम कितना इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट निकल रहा है, मतलब एक स्टाफ को कितना खर्च दे रहे हैं, कितनी सीटीसी हम दे रहे हैं, और उसके हिसाब से वो क्या generate करके आउटपुट दे रहा है, that is what productivity is। rather than HRD is also responsible for managing the employees welfare, एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, उनकी सुख सुविधा को देखना, एम्प्लॉय वेलफेयर को देखना, दिस इज ऑल्सो द टास्क ऑफ HRD, राइट। सो नाउ हियर वी विल जस्ट लुक आफ्टर दिस, मीन्स द HRD रिलेशन विद ऑल द एम्प्लॉयज, मतलब ये जो मैंने दिखाया, दिस इज कॉल्ड स्टाफ रिलेशन, इसको बोलते हैं हम स्टाफ रिलेशन, ठीक है। वेयर इज लाइन रिलेशन, लाइन रिलेशन किसको बोलते हैं? ये जैसे मार्केटिंग का अपने डिपार्टमेंट में, अपना डिपार्टमेंट का नीचे में, नीचे की तरफ जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं हम लाइन रिलेशन से। मतलब मार्केटिंग का अपने डिपार्टमेंट के ऐसे नीचे वर्टिकली, जो जैसे इसके नीचे भी और कुछ लोग हैं, इसके नीचे भी, तो ये हो गया उनका लाइन रिलेशन, लाइन अथॉरिटी भी बोलते हैं इसको। लाइक ये फिनेंस का, फिनेंस के नीचे हैं कुछ बंदे, फिनेंस के इस तरफ है कोई बंदे, इधर नीचे और भी कुछ लोग हैं, तो दिस इज कॉल्ड लाइन फंक्शन।
लाइन फंक्शन मीन सिंपली इंडिकेट करता है विद इन द सेम लाइन और विद इन द सेम डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड लाइन रिलेशन। वेयर इज स्टाफ रिलेशन मतलब क्या होता है, एचआर के संग बाकी सारे लोगों का जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाफ रिलेशन। अब क्या होता है, कभी कभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जैसे मैंने काम बताया, उनका काम है सारे एम्प्लॉइज को लेकर उनको मॉनिटर करना, उनकी प्रोडक्टिविटी चेक करना, उनके एक्सपेक्टेशन चेक करना एंड व्हाट नॉट, बहुत काम होता है। मतलब एचआर डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एम्प्लॉइज, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी ले लो आप। तो लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हटा रही हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है, अगेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने ये 2 बंदों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सपोज 2 हैं, 10 हैं, 200 हैं, व्हाटएवर कुछ भी है, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 2 पीपल, ये छोटा सा है, ठीक है। नाउ ये अपने लोगों को लेकर रिपोर्टिंग अपना डायरेक्टर को कर रहा है, दिस इज डायरेक्टर, ओके। नाउ यहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट है, अगेन ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी स्टाफ, वो तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो एचआर ने क्या हुआ, एचआर ने बोला कि भाई आपने छुट्टी ली थी, उसका रिपोर्ट आप मुझे भेजो, या छुट्टी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर चाहिए। अब मार्केटिंग वालों के संग एचआर का क्लैश लग जाता है, नॉर्मली इसी को बोलते हैं लाइन और स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि दिस इज, दे आर माय स्टाफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं इसका लीव अप्रूव करूंगा, छुट्टी दूंगा नहीं दूंगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो आई विल टेक केयर एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द डायरेक्टर। वेयर इज डायरेक्टर तो एचआर के ऊपर आएगा, देखो इसको मैं साफ सुथरा करके दिखा रही हूँ। एचआर वाले क्या बोल रहे हैं, एचआर का काम क्या है, स्टाफ रिलेशनशिप, मतलब कहीं पर भी कोई भी स्टाफ है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आके इसके माथे पे गिरी, क्योंकि जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, सपोज डायरेक्टर को ले लो, ही विल आस्क क्वेश्चन टू एचआर कि इतना एब्सेंटिज्म रेट क्यों है, प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, व्हाट इज दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है इस डिपार्टमेंट की, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट, राइट। अब ये जो मार्केटिंग का जो हेड है, मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है ये मेरा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीपल, राइट। नाउ व्हाई दे विल आंसर टू एचआर डिपार्टमेंट, मतलब इन लोग एचआर डिपार्टमेंट को क्यों लीव के लिए अप्लाई करेगा या क्यों छुट्टी लेगा, इस तरह का इश्यूज नॉर्मली हर डिपार्टमेंट के संग होता है, एचआर का झमेला सबके संग होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। कुछ कुछ समझा पाई मैं, समझ आया कुछ कुछ? yes ma'am. चलो ना, एज आई सेड कि एचआरएम एक काफी ब्रॉड फंक्शन है, तो जैसे मैंने बताया इन एंड आउट से लेकर सब कुछ ही एचआरएम में इन्वॉल्व होता है, राइट। सो एचआरएम इज अ प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 फंक्शंस, मैं इसके 4 फंक्शंस आप लोग को बता रही हूँ, जो मेन जो फंक्शंस है वो क्या है। इसमें फर्स्ट आ जाता है अक्वायरिंग, ठीक है, देन डेवलपिंग, मोटिवेटिंग, ठीक है, मोटिवेटिंग एंड रीटिंग। तो एचआरएम का जो मेन 4 फंक्शंस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री टिल एग्जिट। तो यहाँ पे देखो अक्वायरिंग फंक्शन तो क्लियर है, समझ में आ रहा है, एंट्री के लिए अक्वायरिंग फंक्शन, अक्वायर करना, सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, वो काम हो गया। सही लोगों को लाके डेवलप करना, या तो सही लोगों को लाके डेवलप करना, या जो मेरे पास है उनको प्रॉपरली डेवलप करना, ठीक है। मोटिवेटिंग, प्रॉपर मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, एंड देन रिटेंशन, एग्जिट की बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा मैंने एग्जिट हो जा रहे हैं, तो रिटेंशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो एचआरएम का एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारे काम होते हैं, राइट। अब हिस्ट्री ऑफ एचआरएम में मैं एकदम ब्रीफ में बता दे रही हूँ थोड़ा सा। जैसे आज की डेट में जो हम एचआरएम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो पहले नहीं था, पहले बिल्कुल पर्सनल मैनेजमेंट वाला अप्रोच था इस तरह का। मैंने 1980s तक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग यूज करते थे, जहाँ पे एकदम स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंसी, इस तरह की ही बात होती थी, राइट।
मैनेजमेंट पॉलिसी मीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी, कोई फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं था, ठीक है। तो इनिशियल डेज की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट एकदम अब साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला जो टाइम है उसको ले लेते हैं हम लोग। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच उस टाइम में ये है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली कब आया था? इन द अर्ली 1900s की बात है। Most business owners and managers believe that if employees were to be effectively managed, they had to be constantly supervised and forced to work. All employees were considered to be equal in terms of productivity. When they failed to achieve the set target, they were disciplined or fired. The scientific management approach challenged this beliefs and suggested that managers adopt a scientific and objective approach to determine how work could be designed and carried out more significantly. तो ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, उसके पहले का अप्रोच है। अच्छा, ये लाइन जो है ना अब कट जाने वाली है, तो मैं आप लोग को एक नया लिंक भेज रही हूँ, तो इधर में तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बेटर मैं आपको नया लिंक भेज रही हूँ पहले।